So in the joint sector enterprises, we completed the types of joint sector enterprises, and we completed the topic on about the meaning of joint sector enterprises. Who is going to tell me about the types and what is the meaning of joint sector enterprises? Who is going to tell me about it? Raise your hand. कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me about it? What is the meaning of joint sector enterprises and what are the various types of it? Yes, Anisha. Yes, ma'am. Joint sector enterprises is an enterprise which is formed with a partnership between private sector and the government, in which state participation in capital. आप पहले एक मिनट Anisha, whatever Yes, you are speaking, please turn on your camera. कैमरा टर्न ऑन कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए. हाँ, चलिए. Yes, ma'am. Joint sector enterprises is an enterprise which is made due to the partnership between government and the private sector enterprises. प्राइवेट सेक्टर भी और एक गवर्नमेंट सेक्टर के बीच का पार्टनरशिप है आपका जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. ठीक है. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इट? व्हाट आर द टाइप्स? And transforming new companies, transforming with the private limited companies. Private limited company. हाँ, ठीक है. Private limited companies, yes. And public limited also, and new companies. चलिए, ठीक है. Good. So we were basically on the topic of scope of joint sector enterprises. What is the scope? Why it is required, in short. Okay, why joint sector enterprises is one of the thing which is important in India, because we all know that in India there is a mixed economy. So in short, we required we have both options, like there are private sector, there are government sector, right? So why those joint sector enterprises are required? The first one is failures of private and public sectors. See, so many private sectors are not able to sustain in India because of the lack of fund, lack of finance, right? So this is the basic reason behind the failure of the private sector. But if we'll talk about the management efficiency, there is a very great management efficiency in the private sector. But if we'll see the public sector mein that is just opposite. Like they have fund, but they don't know how to allocate it properly, and there is a lack of management, managerial functions, right? So if the enterprise will run like this in joint sector, so यहाँ पर आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों इकट्ठे जब साथ चलेगा, तो दोनों की जो कमियां होंगी, दोनों की जो लैक है, कमी है, that is going to cover up, right? So the first reason is failure of private and public sector. If there is a lack of fund, the government will provide in the joint sector, and if there is the lack of management, the private sector is going to fulfill that demand in the joint sector enterprises. तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा सबको. एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में 26% कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट वन इज social control over industries. I guess this point is already completed. Yes, ma'am. Okay, next one is accelerating the economic growth. This point is also completed. No, ma'am, it was not. No, it was. Ma'am, extension of public control. No, it is already completed, but I just want to explain it once again. ठीक है, एक बार और कर लेते हैं. So accelerating the economic growth, it means that there is a इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन. इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? जो स्थिरता होती है इंडस्ट्रीज में आ जाती है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, लाइक द इंडस्ट्रीज आर रनिंग इन द कन्वेंशनल वे, the industry have lack of technology. There are so many reasons, and somehow because the lack of proper production system, there is a industrial stagnation, and this is the major, both of the drawback of the industries. If it is not able to work properly, how it is going to produce? No, obviously no. So, and basically these industrial stagnation is found in the small and the micro enterprise, small enterprises in short. ठीक है. So for removing this stagnation, this joint sector enterprises will work, right? So यहाँ पर आपका जो government है, they just participate in joint sector, and it would help to the industries to for the fund, right?
for the technological advancement, and if it is required कि बाहर से भी कुछ अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी मंगवाना चाहिए, तो उस केस में भी आपका गवर्नमेंट जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। नो डाउट इफ द इंडस्ट्रीज विल इम्प्रूव, इट इज गोइंग टू produce more, the production is more, then consumption is more, and there is a economies of scale wala condition. So in short it is going to contribute to the economic growth. तो कहीं ना कहीं जो आपके joint sector enterprises हैं, it is working like that, right? So it is also helpful for accelerating, यानी speed देना for what, to what, economic growth. I guess this point is also clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Next one is extension of public control, which I already told you, but let me explain it. एक एक करके मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को. So joint sector enterprises जो है, that is going to lessen the burden on of the public sector in making huge investment with the insignificant return. So many sector, public sector, there are so many public sector enterprises which is not properly working in India, which I already told you in the earlier class. And I even took the name of those industry, those companies, those sector, right? So even the government somehow they know if they are going to invest in something in from which they are not able to get the return, it's better to invest in those businesses which is going to basically give something in return, at least something in return. So here they are talking about that if we are going to work like a joint sector, first of all there will be the control of the public, obviously if there is a control of the government, and second thing, whatever inefficiency is there related with the public sector enterprises, that is going to remove by using this joint sector enterprises. So we can say that joint sector enterprises से कहीं ना कहीं public sector enterprise में जो भी huge investment करने वाले हैं, वो कोई भी नया project start करने वाले हैं, कोई भी नया sector जो establish करने वाले हैं, उससे बेहतर है, जिसके बारे में उनको uncertainty भी है कि return आएगा कि नहीं आएगा, risk बहुत ज्यादा associated है, तो ये कहीं ना कहीं reduce हो जाएगा ये situation by basically working as a joint sector enterprises. And they are even going to persuade, मैं ये भी बता रही हूँ यहाँ पर कि ये लोग खुद, जो आपकी गवर्नमेंट है, खुद persuade करती है, किसको persuade करती है, किसको influence करती है, प्राइवेट सेक्टर enterprises को, कि आप आइए और हमारे इस enterprise में invest कीजिए, investment कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब वो investment करेंगे तो उनकी efficiency कहीं ना कहीं यहाँ पर contribute होगी, ठीक है। तो in short it is going to make the, बोल सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द पब्लिक कंट्रोल, कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा उस एंटरप्राइज में, लेकिन आपकी जो रिस्क है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला जो रिस्क है, इट विल बी मिनिमाइज। क्लियर हो गया सबको? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ टेक्नो मैनेजरियल रिसोर्सेस, मोबिलाइजेशन ऑफ टेक्नो मैनेजरियल रिसोर्सेस, मोबिलाइजेशन ऑफ टेक्नो मैनेजरियल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन मतलब कि चलना, बेसिकली घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑर्डर टू मोबिलाइज द स्कार्स ऑफ टेक्नो मैनेजरियल रिसोर्सेज created in the private sector, the joint sector can play a useful role by mobilizing both financial and scarce highly developed human resources. See what they are talking about, they are not talking about the normal managerial skill which we are able to find in India very बोल सकते हैं very easily, right? They are talking about those skill which is not available in India, right? कोई नया टेक्नोलॉजी आता है इंडिया में, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन कई बार ये भी उसमें सिचुएशन है कि आपका जो आपको मैनेजरियल स्किल की रिक्वायरमेंट है, जो आपको मैनेजरियल स्किल की रिक्वायरमेंट है, कई बार वो आपको नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इज न्यू and the skill, the people are not trained to use that, right? तो अगर आपके पास स्कार्स है, कमी है रिसोर्सेस की, फंड की कमी है, और साथ साथ में वैसे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है जो कि आपकी कंट्री में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो उनको मोबिलाइज करना, उसको दूसरे कंट्री से मंगवाना, दिस इज बेसिकली डन बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट? So in short, it is helpful for the private sector because the public sector, the government is the only who is going to basically mobilize both financial and the highly
डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द अर्जेंट बेसिस, मतलब जल्दी से जल्दी वो मंगवा सकते हैं. So it is helpful for development of the joint sector enterprises. But just think that अगर कोई private sector normally run कर रहा है and उनको urgent basis पे कोई हो सकता है कि highly knowledgeable, technical knowledgeable person चाहिए, तो कई बार ये आप खुद से, ये बहुत expensive होगा, आप खुद से approach नहीं कर पाओगे, तो वहां पर government जो है वो आपको help करेगी for mobilizing the, बोल सकते हैं, टेक्नो मैनेजरियल रिसोर्सेस. ठीक है, यानी कि हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स विच इज नॉट अवेलेबल इन द कंट्री. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट वन इज ब्रॉड बेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप. ब्रॉड बेसिंग BASING, बेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रॉड बेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, broad basing entrepreneurship. Okay, what is the meaning? Who are entrepreneurs? Who are an entrepreneur? कोई बताएगा मुझे entrepreneurs कौन होते हैं? Yes, Anisha. Yes, ma'am. Who initiate something new which is not existing on the market. Very good. Next, Ritik. Ma'am, entrepreneur is a risk taker. They are the risk taker basically. So we all know that entrepreneurs are those people who is starting the new business or setting up the new business with some innovative ideas, and they are the risk taker, and they are the very much passionate toward their business, right? So we all know there are so many stories of that. But why I am saying this, that because of this point. What is the meaning of entrepreneurship? Let me elaborate it. Entrepreneurship is the process. Entrepreneurs are the people, they are the individual, they are the group of people, but the entrepreneurship is a process of setting the new business. Whatever the process is required to set up or establishing the new business, it is known as entrepreneurship. It is a way of establishing the new business, right? So joint sector even play the effective role for the broad basing entrepreneurship in wide range of industries by promoting a good number of small entrepreneurs. ठीक है, सो यहाँ पर ज्वाइंट सेक्टर जो आपका ज्वाइंट सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं वो बहुत बेटर रोल प्ले करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो बेस है वो बहुत इंक्रीज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करते हैं बाय प्रमोटिंग द गुड नंबर्स ऑफ द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स to develop with the government support and the facilities. So the joint sector enterprises also play important role for promoting the entrepreneurship. In short, they are basically promoting the entrepreneurship business. They are basically facilitating the loan facilities as well as infrastructure which is required to set up the new business. Okay, and basically government is supporting them in this case. And उसके साथ साथ a number of state industrial development corporations have been playing such role. और अगर ये आपका joint sector enterprises तो करता ही करता है, उसके अलावा आपके SIDCs जो हैं, आपके SIDC state industrial development जो corporation है, they are also playing important role for basically increasing the base or opportunities for the entrepreneurs. And यहाँ पर आपका joint sector enterprises are also basically working for them. So broad basing entrepreneurship का मतलब यही है कि joint sector enterprises they are also facilitating और फैसिलिटी टू द एंटरप्रेन्योर्स जो नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनको ये प्रमोट करते हैं, उनको ये मोटिवेट करते हैं कि आप बिजनेस को सेटअप कीजिए. दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटीज. बहुत सारे आपके SIDCs जो है, दे आर प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटीज, दे आर प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू स्टार्टिंग अप द न्यू बिजनेस. ठीक है, सो यहाँ पर द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस बेसिकली इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? एवरीवन? यस मैम, ये एंटरप्रेन्योरशिप का ही ना पॉइंट था मैम. इट इज हाँ, ये आपका जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज का पॉइंट है कि हाउ इट इज, मतलब इट इज आल्सो बेसिकली हेल्पफुल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, इट इज अ बेसिकली ये पॉइंट था कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस इज वर्किंग. ओके, so how the government is supporting, for government supports them, they are basically providing them loan facilities, infrastructure facilities, tax concession is there, subsidies are there, so many things they are providing to the entrepreneurs.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज and for increasing the scope of entrepreneurship, the joint sector enterprises are also increasing because they want to help the people to start the new business. No doubt that the people want to do their own job right now. Abhi kya situation hai, youth are basically initiated or they are motivated in short to start a new business because no one want to do job under some person. There is so many factors that people are motivated towards the entrepreneurship. Even government is also facilitating them so many things. So this is the reason. So joint sector enterprises is also basically responsible for this. Okay, so that this point is elaborating about the entrepreneurship. Now the next one is reducing the losses of public sector undertaking. Reducing the losses of public sector undertaking. PSUs की बात हो रही है. कैमरा ऑन करिए सब. Everyone. चलिए, okay, so reducing the losses of the public sector undertakings. I already told you that PSUs में आपके वही सारे आपके जो भी मैंने आप लोग को बताया था, सेल, भील, these are the basically PSU, public sector undertaking. So the transformation of loss incurring PSUs into joint sector undertaking through disinvestment of the shares, which I already told you कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं. उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब वो लॉस में थे, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन्वेस्टमेंट? इसमें क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने शेयर्स को, मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ स्क्रीन फिलहाल, देखिए, जैसे कि अच्छा, जैसे कि आपका ये 100 मान लीजिए शेयर है पीएसयू का, तो यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप इसमें से 90 शेयर जो है अपने पास रखा और 10 शेयर जो है वो आपने किसी प्राइवेट को दे दिया, तो इसको भी हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं. डिस इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर सेलिंग द शेयर टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन शॉर्ट. ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो मैंने टाइप्स में बताया था, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन हुए, बिकॉज ऑफ द लॉस incurring PSUs in the joint sector undertaking through the disinvestment of shares. एंड यहाँ पर पहले क्या था कि PSUs काफी लॉस में चल रहे थे, तो फिर उनका डिसइन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया, यानी कि उनके शेयर्स को हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों को, इन्वेस्टर्स को सेल करना शुरू कर दिया. एंड दिस इज हाउ द management pattern was totally changed. Means whatever when the public sector undertakings were in loss, they started basically gaining the profit because they get the option of the management. ठीक है, managerial skill, and the management pattern was totally changed. ठीक है, so we can say that because of the joint sector enterprises, those basically बोल सकते हैं, those PSUs which were in a huge loss, they started basically giving the profit. So अगर जो आपका लॉस जो वगैरह जो भी हो रहा है PSUs को, उसको भी रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. क्लियर होगी बात, समझ में आ गया सबको? यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया. अच्छा, एक और यहाँ पर पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है आपके ज्वाइंट सेक्टर में. पहला फर्स्ट पॉइंट, चलिए बताइए मुझे, हु इज गोइंग टू टेल मी द फर्स्ट पॉइंट? सी, टुडे पब्लिक सेक्टर, हु इज गोइंग टू एलैबोरेट इट? बताइए. फेल्योर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन turn on your camera. Camera turn on कीजिए. Public sectors, we can understand that private sectors in somehow faces the problem of funds in some manner, and the government is capable of funding them with such an amount. And the public sector, like government run sectors, run with the managerial shortage or problems of managerial purpose. So, and private sectors are capable of handling the managerial sector in a better manner. So both the failures can be managed by working together. So we can understand that joint sector enterprises
If there is a more joint sector enterprises, both the Hmm. failures can be managed and working of the government and the private sector can help increase the economic growth and the industrial power of Very the good. country. Very good. Very good. Very good. He elaborated in a very good way. तो I guess आप लोग में से बहुत लोगों को जो भी डाउट भी होगा पॉइंट तो वो क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, सोशल कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज. Next, Rashi, roll number 40. Elaborate this point. Who is going to tell me about the social control over the industries? Social control over the industries. Who is going to elaborate this point? Raise your hand. Okay, let's. Yes, Anisha. Yes, ma'am. Social control over industries. By this point, we understand that with joint sector enterprises, the government has control, means the control over the industries will increase. Control over industries will be increased because in the joint sector enterprises, there it might be possible that they are not participating in the day-to-day operation. The government is not participating, but the control is there of the government on these enterprises. Okay. So I'm just talking about the two basic points. The first one is that what is the basically position of the government in the joint sector? Joint sector में अभी government का क्या position है? I'm talking about this. And what is the situation of the joint sector enterprises in India right now? So I'm talking about these two topics. The first one is that the joint sector है is now gradually occupying the dominant position in the case of the industries. अगर हम industries की बात करें, हमारे country में ज्यादातर जो industries हैं वो उसमें ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो ज्वाइंटली रन हो रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट जो दोनों साथ मिलके रन कर रहे हैं. तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस का वाज इनिशियली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी 1970. तो सबसे पहले जो ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो कहानी था वो 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्टेंस से शुरू हुआ था. जो कंसेप्ट है ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस का वाज इनिशियली, मतलब किसने एक्सेप्ट किया था ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस के कॉन्सेप्ट को 1970 में? आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू इट्स आपका ILP इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया. अगर हम पोजीशन की बात करें गवर्नमेंट की ऑन द ज्वाइंट सेक्टर, व्हिच इज बेसिकली reiterated by its इंडस्ट्रियल पॉलिसीज डिसीजन ऑफ द February 1973. तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको 1973 के बाद जो है इसको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब द गवर्नमेंट विल स्टार्टेड मेकिंग द ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. अब यहाँ पर कुछ सम ऑफ द कुछ पॉइंट्स हैं जिसने फाइनलाइज किया, व्हिच इज फाइनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर. मतलब गवर्नमेंट ने कुछ और भी फैक्टर्स को फाइनलाइज किया ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में. पहला है कि ज्वाइंट सेक्टर यूनिट्स वुड बी डेवलप्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ सच यूनिट्स मस्ट कंफर्म टू गवर्नमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. यानी ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो स्टार्ट होगा, वो डेवलप होगा और उसकी डेवलपमेंट जो भी होगी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करनी चाहिए. यानी ऐसा नहीं कि ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं तो फाइनली आप क्या करना शुरू कर दें कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह यू स्टार्टेड वर्किंग लाइक यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर. बट यहाँ पर इनका कहना है कि जो ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसके लिए गवर्नमेंट 1970 में मान गई और 1973 से इट वाज स्टार्टेड इवन वर्किंग. जो ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट था इट स्टार्टेड वर्किंग. बट यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स जो थे उसको बहुत क्लैरिफाई करने की जरूरत थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट दोनों इस तरीके से, दे बोथ आर नॉट सिमिलर, दे बोथ आर बेसिकली डिफरेंट. तो यहाँ पर जो इनका कहना था कि आपको जो ज्वाइंट सेक्टर यूनिट्स होगा वो डेवलप करना है. डेवलपमेंट ये यूनिट्स का जो भी होगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए. ठीक है. सेकंड क्या था कि जो ज्वाइंट सेक्टर है will be allowed to participate in those areas where the private sector is not allowed. मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर को राइट नहीं है या फिर उनको रिजर्वेशन
मतलब गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की वजह से प्राइवेट सेक्टर भी उसमें एंट्री कर पाएंगे उन सेक्टर्स में। तो ज्वाइंट सेक्टर विल बी अलाउड, कहीं ना कहीं ज्वाइंट सेक्टर जो थे दैट वाज अलाउड to participate in those areas where the private sector is not allowed to participate under the existing policy। उस समय जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उस हिसाब से जो भी सेक्टर में आपके प्राइवेट सेक्टर को एंटर करना अलाउड नहीं था, ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस से कहीं ना कहीं ये पूरा हो गया। मतलब दे आर द ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर एंटर इन दूस एरियाज बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, राइट। नेक्स्ट वन इज in respect of the new and medium entrepreneurs, मतलब जो बिल्कुल नए एंटरप्रेन्योर्स थे और जो थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस जो रन कर रहे थे, जो ज्वाइंट सेक्टर वुड बी प्रमोशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर देम। मतलब ज्वाइंट सेक्टर ने उनके लिए प्रमोशन का भी काम किया और प्रमोशन करे। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि दे विल प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दैट पॉइंट। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट विल इंश्योर एन इफेक्टिव रोल इन द गाइडिंग पॉलिसीज। मतलब जो ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसके लिए मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैनेजरियल स्किल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का यूटिलाइज होता है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में। यहाँ पर यही पॉइंट बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट विल इंश्योर एन इफेक्टिव रोल, दे हैव द बेसिकली कंट्रोल वाला पोजीशन पे गवर्नमेंट रहेगा। एंड इन द गाइडिंग पॉलिसीज, मतलब दे आर नॉट मेकिंग 100% पॉलिसीज बट दे आर द पार्ट ऑफ द गाइडिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को गाइड करेंगे, बनाएंगे। मैनेजमेंट में भी गाइडेंस का काम कर सकते हैं, ऑपरेशन में, इन ऑल द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ज्वाइंट सेक्टर in units. It doesn't mean that if they are contributing only 27% of the capital, the government have no right. Yes, government have right, they are in the dominant position, yes, but whatever is done that is according to consent of the private sector as well. Means they are there in the advisory position, they will guide the policies, they will help in the management as well as in the operation, right? So both the enterprises will work, government enterprises as well as the private enterprises, ठीक है। उसके अलावा एक और भी चीज थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इज नेसेसरी टू ऑब्टेन इफ द प्राइवेट कंसर्न बिलोंग टू वन ऑफ द बिग हाउस और द फॉरेन मेजॉरिटी कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी जो थी उनको कुछ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को कुछ फैक्टर्स देखना पड़ा था, कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे कि जो भी प्राइवेट कंपनी है जो बड़े किसी फॉरेन कंपनी का पार्ट है, अगर आप उनके साथ ज्वाइंट सेक्टर की तरह चलाना चाहते हो इंटरप्राइजेस, तो उसके लिए आपको पहले परमिशन मेन कंपनी फॉरेन कंपनी से लेना पड़ता, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो थे जो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोलैबोरेट करके स्टार्ट करना चाहती थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे कि अगर यहाँ पर याद रखिएगा ज्वाइंट सेक्टर में कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया इस पॉइंट को समझाने से पहले कि अगर आपका ज्वाइंट सेक्टर कोई भी प्रोजेक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इंटरप्राइज की बात नहीं हो रही, अगर जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो आप और ये स्टेट गवर्नमेंट या SIDC कोई भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। क्या गाइडलाइंस जारी किए थे कि पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी, सॉरी दैट पॉइंट आई इलैबोरेटेड इन द डिफरेंट वे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन जो है इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, उस सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, SIDC को, बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क विथ द प्राइवेट इंटरप्राइजेस which is basically belong to the foreign majority company। यानी अगर फॉरेन मेजॉरिटी कंपनी का वो प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे सिचुएशन में अगर SIDC और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के इनके साथ कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन जरूरी होगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये जो मैंने पॉइंट बताया कि क्या गाइडलाइंस जारी किया गया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और SIDCs अगर कोई मतलब कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया कि परमिशन आपको लेना पड़ेगा अगर फॉरेन मेजॉरिटी कंपनी है आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन पार्टिसिपेशन, अगर जो भी प्राइवेट आपकी कंपनी जो पार्टिसिपेट कर रही है वो फॉरेन कंपनी है, तो in case of the foreign participation there would be the 25% equity
for state government or state corporation, 20% for the Indian entrepreneurs, 20% for the foreign investor and 35% for the investing public. यानी कि अगर फॉरेन पार्टिसिपेशन हो रहा है किसी भी आपके ज्वाइंट प्रोजेक्ट में, तो ऐसे सिचुएशन में जो इक्विटी यानी शेयर्स किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए 25% जो इक्विटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा? 25% किसका होगा? State government. स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन। स्टेट कॉर्पोरेशन वही SIDC का हो सकता है या तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। 20% किसका होगा? इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का। किसका? 20% किसका होगा? Indian एंटरप्रेन्योर। हाँ, इंडियन एंटरप्रेन्योर, यहाँ फॉरेनर नहीं लिखा है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा। फिर 20% किसके लिए होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स। किसके लिए? फॉरेन इन्वेस्टर। और 35% होगा फॉर द इन्वेस्टिंग पब्लिक। फॉर इन्वेस्टिंग पब्लिक यानी 20% या तो स्टेट कॉर्पोरेशन या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट, 20% इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, 20% फॉरेन इन्वेस्टर्स, 35% इन्वेस्टिंग पब्लिक। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ कुछ गाइडलाइंस है विच इज रिलेटेड विद द, जब आपका स्टेट और SIDCs जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ अगर वो बेसिकली कोलैबोरेट करके काम करता है, मिल करके काम करता है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसमें हमने 2 पॉइंट कर लिया। पहला परमिशन वाला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट अबाउट द इक्विटी शेयर से रिलेटेड। ठीक है, थर्ड में क्या है? इफ देयर इज नो फॉरेन पार्टिसिपेशन, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं है तो देयर शुड बी, अगर कोई फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं है उस केस में क्या होगा ये देखिएगा। 26% इक्विटी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वहां पर कितना था? 20% था। ठीक है, वहां पर 25 था, यहाँ पर 26 हो गया। ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं है तो वहां पर किस तरीके से इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ध्यान देने वाली बात है। 26% इक्विटी जो होगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट का या तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस का, SIDCs का। ठीक है, 25% होगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, 25% जो होगा दैट विल बी ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और 49% जो होगा दैट विल बी इन्वेस्टिंग पब्लिक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 49% पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। 25% जो है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का हो सकता है और 26% जो होगा दैट विद द ओनरशिप उसका किसमें हो, किसका होगा? आपके स्टेट गवर्नमेंट का या तो फिर आपके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो यहाँ पर रेशियो बिल्कुल बदल गया पहले वाले पॉइंट से, क्योंकि पहले फॉरेन कंपनी भी पार्टिसिपेट करती, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके नहीं है। क्लियर होगी बात? समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यस अंकु, मैम एक बार और बता दीजिए। पहला जो है कौन से वाला, C वाला पॉइंट या B वाला? जो 49% वाला था वो वाला। अगर कोई फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं है, इफ देयर इज नो फॉरेन पार्टिसिपेशन, सो इन दैट सिचुएशन जो इक्विटी का रेशियो होगा वो बदल जाएगा। 26% आपका ओनरशिप हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, और OR है यहाँ पर, एंड नहीं है, और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 26%। 25% जो होगा दैट विल बी ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यानी यहाँ पर जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 25% उनका होगा, और 49% जो होगा दैट विल बी ऑफ द पब्लिक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक या तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो पार्ट होगा 49%। ठीक है, तो पहले वाले में रेशियो क्या था? 25, 20, फिर आपका 20 और 35। यहाँ पर क्या होगा? 26, 25, 49। क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? यस मैम। चलिए
नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, SIDCs और स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो फॉरेन के साथ पार्टिसिपेट करता है, कोलैबोरेट करता है, प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टिसिपेट करता है, तो उसके लिए जो यहाँ पर आपका गाइडलाइंस है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें हम 4th पॉइंट पे चलते हैं। विदाउट द प्रायर परमिशन, परमिशन मतलब पहले लेना, प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, no single parties is allowed to hold more than 25% of paid up capital। यानी कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के, कोई भी सिंगल पार्टी, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई भी पार्टी आपका 25% से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं रख सकता। मतलब दिस परमिशन विल बी अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन। सो बिना परमिशन से पहले, आप परमिशन मिलने के बाद यू विल टेक दैट मोर देन 25, बट विदाउट द प्रायर परमिशन, परमिशन मिलने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का नो सिंगल पार्टी, कोई भी सिंगल पार्टी को अलाउ नहीं है टू होल्ड मोर देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ पर? यस मैम। ओके, अब चलिए यहाँ इन 1980, मतलब यहाँ पर तो बहुत सारा है, लेकिन एक यहाँ पर एक डेटा है जो मैं बता देती हूँ। ऐसे तो प्रॉपर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट नहीं है जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का डेटा हमें दे दे, क्योंकि ये बहुत पुराने स्तर पे हम बोला जाए तो स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था उस समय तक शुरू हो गया था, 73-74 से तो स्टार्ट हो ही गया था। 1982 की अगर हम बात करें तो जो शेयर होल्डिंग था आपके 68 ज्वाइंट सेक्टर कंपनी, उस समय 68 ज्वाइंट सेक्टर कंपनी में जो आपका शेयर होल्डिंग था, दैट वाज असिस्टेड बाय द IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1982 में लगभग शेयर होल्डिंग जो 68 आपके ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज के थे उसको असिस्ट की कौन कर रहा था? आपका IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें ना ये दोनों मैनेज कर रहे थे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी और नॉन रेसिडेंट को भी कर रहे थे, रेसिडेंट को और नॉन रेसिडेंट को। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटाज वगैरह हैं बस। अगर हम प्रेजेंट पोजीशन देखें ज्वाइंट सेक्टर इन इंडिया, मतलब इंडिया में क्या ज्वाइंट सेक्टर का भी अभी क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर कुछ उसी के डेटा गिवन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी आप लोगों को। यहाँ तक कुछ भी डाउट है किसी को भी? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने करवाया है आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर फिर भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इस पॉइंट को कर लेंगे, इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। ओके, Thank you, ma'am.